जी, array of characters, they have a special symbol, सुन ले भाई, special symbol associated with them, and that is the null character. Every array, बस भी बात नहीं करें, every array of characters and with a special symbol, बस भी बात नहीं, and with a special symbol called \0, and it is called null character. Why it is a character? Because it's in single quotes. \0. So every character array definitely ends with a null. बस भाई बात है सबको इधर कंसंट्रेट करें थोड़ा. कैरेक्टर स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू हेलो. अगर आप इसको इस तरह लिख रहे हैं एरे की फॉर्म में, डबल कोट्स की फॉर्म में, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज द नेम ऑफ एन एरे, कैरेक्टर डेटा टाइप है, ओमिटेड है इसकी लेंथ, वो ऑफ कोर्स डिटरमिन हो जाएगी with the number of initializers. You can write it in double quotes as well. So here, after writing this will be the memory state. HELLO \0. So after writing this line, this is how the array will look like. Or you can do it explicitly as well, element by element, just like that. Character string 1, curly braces, H is a character, single quotes, comma E, L, L, O, \0. You either write this way or this way. This is the memory state in both the cases. If you want to pinpoint any element in this array, string 1 of 0, क्या value है? H. Then string 1 of 2, L, of course. ठीक है. आपने इनपुट लेनी है कीबोर्ड से. You want to get input from the user. इंटीजर एरे में आप क्या करते हैं? फॉर लूप लगाते हैं, कंप्लीट, ठीक है, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट इनपुट दे दे. बट दिस इज नॉट द केस इन कैरेक्टर एरेज. यू जस्ट क्रिएट द एरे, and see in string 2 it will start taking input from the user without any loop. मगर इसमें एक इशू है, it will stop at very first white space. मीन जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, लेट्स सपोज आप लिखना चाह रहे हैं हेलो स्पेस देयर, तो आपने लिखा हेलो स्पेस, आपने लिखा देयर, मेमोरी की स्टेट है. Whenever there is a first white space, it adds null character to the end and it does. This is how we get input to this. इसका भी ऑफ कोर्स सॉल्यूशन होगा. अब आपने पूरी लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखनी है, अपना नाम लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है. इस ऑफ कोर्स इन्वॉल्व्स स्पेसेस, इजंट इट? उसका हमें कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा. आप इंटीजर एरे को, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट एन इंटीजर एरे, किस तरह प्रिंट करते हैं? इंटीजर एरे पे फॉर लूप लगाते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रिंट करते हैं. ये आपका कैरेक्टर एरे इनिशियलाइज हो चुका है. सिंपली राइट cout string without any loop. It will display the contents of the array till null. This is how compiler will know when to end. लूप में भी आप यही बताते हैं एक्चुअली, where to start, where to end. So in character arrays, \0 will serve the purpose. Just for writing cout, name of the character array, it will display the content of the array, element by element till null. So no for looping in cout as well. Just create it, get the input, and display the array without any loops. So that's why I was saying it is rather easier to implement compared to integer arrays, with of course some sense involved. Let's suppose character string 1 of 20 length, string 2 string literal, string space literal. It has been initialized with this. cout, enter the string. You are prompting the user to enter hello space there. String 1, user has entered hello space there. What is the state of string 1? Hello.
here is the state, only hello. मैं आपको बताया ना, जैसी स्पेस बार आएगी आप बेशक देर लिख लें, वो कंसिडर नहीं होगा. What will happen in case of string 2? String 2 कहां तक डिस्प्ले होगा जी? देखें, स्पेस तक की जो बात थी वो सीन के साथ एसोसिएटेड है, नॉट विद द इनिशियलाइजेशन. इट विल डिस्प्ले कंप्लीटली टिल नल. स्ट्रिंग स्पेस लिटरल कंप्लीट इंक्लूडिंग स्पेस, बिकॉज हियर यू हैव इनिशियलाइज्ड इट. हियर यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर. So that was for taking input from the user, that it will append \0. But in case of initializing it with a string literal, it will display the complete content of the array as it is. तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया जी. ये आपने हेलो किया, डिस्प्ले हो गया. इसी तरह आपके एग्जाम में आ गया, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जी कि आपने हेलो को स्पेस के साथ प्रिंट करना, क्या सी आउट ये काम कर सकते? सी आउट ये करेगा, आपने स्पेस के साथ करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट रीड करना है. क्या करेगा? अरे आपके सामने एलिमेंट बाय एलिमेंट रीड करना है. एक एलिमेंट रीड करें, स्पेस दे दी, लूप लगेगी फॉर i इक्वल टू 0. आगे खत्म कहां तक होने? लेंथ तो आपको नहीं पता. कंपाइलर जब डिस्प्ले करता है क्या उसको पता होती है लेंथ? वो क्या टेक्निक यूज करता है, कहां तक डिस्प्ले करना है? तो आप भी यही करें. इफ द क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, कीप ऑन रोटेटिंग द लूप. इफ स्ट्रिंग ऑफ 1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू \0, तो उसका क्या मतलब है? उसमें कोई वैलिड कैरेक्टर है? बात समझ रहे हैं? बात आपने कंपाइलर, अब आपको लूप नहीं है, आपको लेट्स से साइज नहीं पता, मगर ये तो पता है कंपाइलर इस तरह मैनिपुलेशन करता है कि उस वक्त तक डिस्प्ले करता है \0. इस टेक्निक को आप भी कैप्चर कर लें. यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू विल कीप ऑन डिस्प्लेइंग टिल द टाइम स्ट्रिंग 1 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0. डिस्प्ले करो. ठीक है, इसको देख लें आप जरा. लाइन नंबर 25, i इक्वल टू 0, string 1 of i is not equal to 0, i plus plus. i 0 है, string 1 of i क्या \0 है? No. क्या डिस्प्ले करें? h space i plus plus, i becomes 1. क्या ये 0 \0 है? e last over here क्या ये \0 है? Yes. ये आपके आगे हेलो स्पेस दिया आपने लिखा था, इसमें स्ट्रिंग 1 में ये डिस्प्ले हुआ था. स्ट्रिंग लिटरल कंप्लीट डिस्प्ले हो रहा है विद स्पेस. और एलिमेंट बाय एलिमेंट जब आपने रीड किया तो वो किस तरह डिस्प्ले हुए? विद स्पेसेस ओवर हियर. उसके बाद आपने सीन लाइन नंबर 28 देखें. सीन में आपने दोबारा कर दिया देयर उसी में, तो क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? ये पूरा अपडेट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा विद DHERD. सी आउट स्ट्रिंग 1. अपडेट हो जाएगा. तो ये सिंपल मैनिपुलेशन है जी स्ट्रिंग लाइब्रेरी की. लाइब्रेरी तो खैर अभी आ रही है सिंपल कैरेक्टर एरेज की. हाउ टू गेट इनपुट, हाउ टू गेट आउटपुट एंड हाउ टू मैनिपुलेट द एरे. ठीक है ना, वो भी हमने देख लिया कि व्हाई वी नीड मैनिपुलेशन. वी माइट बी स्टक अप इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियोज और वी माइट नीड टू गो थ्रू द एरे एलिमेंट बाय एलिमेंट, व्हाटएवर आवर रिक्वायरमेंट इज.
ठीक है ना, वो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह इसको एक्चुअली। अब उस चीज़ का आंसर भी दे दें कि आपने अपना नाम सेव करना है, सीन करवाना है। खुद लिखा सीन, वो राइट हो गया। सीन फॉर एग्जाम्पल यू हैव इनपुट देयर, तो नाउ द अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग 1 इज देयर, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये देख लें, रीड स्ट्रिंग, सीन, वो चीज। अब आपको स्पेसेस के साथ चाहिए, आपने नाम लिखने हैं, फंडामेंटल स्पेस ऑफ स्पेस प्रोग्रामिंग, सीन करवाना है यूजर से। तो वो जैसे ही आप फर्स्ट स्पेस देंगे सीन, तो वहां काम नहीं करेगा, वो फंडामेंटल्स के बाद \0 लगा देगा। तो इसकी रेमेडी के लिए मे भी लोगों ने ट्राई किया हो गेट लाइन का फंक्शन। यू वांट टू इनपुट द सेंटेंस विद द स्पेसेस इन बिटवीन, तो आप इसको बड़ा सिंपली यूज करते हैं, एरे साइज डिलिमिटर। अभी हमें ये भी समझ आ गया कि एरे किस तरह इसको पास कर रहे हैं। देखिए, एरे कैरेक्टर सेंटेंस 80 का बना लिया, सेंटेंस को पास किया एज एन एरे, उसका साइज और जहां पे स्टॉप करना है एंटर पे, गेट लाइन, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस आ जाएगा विद स्पेसेस। और सी आउट करें सेंटेंस, कंप्लीट डिस्प्ले होगा टिल नल विदाउट लूप, रिक्वायर्स प्रैक्टिस ऑन द एडिटर। ठीक है, ये तो सिंपल मैनिपुलेशन थी आपकी कि आपने सिंपली एरे को क्रिएट किया, उसको मैनिपुलेट किया, उसको इनपुट किया, उसको आउटपुट कर दिया। देयर इज अ रिच कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस इन स्ट्रिंग लाइब्रेरी which is there to help us to manipulate string, compare strings, search the strings, tokenize the strings. For example, अगर मैं उसकी लाइब्रेरी फंक्शंस को जस्ट डिस्प्ले करूं, ये अब लाइब्रेरी फंक्शंस है which are built in, आपको कुछ नहीं करना, you just need to know कि किस तरह उसको यूज करना है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग के कंटेंट को दूसरे में कॉपी कर लेना, ये उसकी प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं। ये अभी इसमें से एक एग्जांपल करते हैं, हमें समझ आ जाएगी। देखिए, कॉपी स्ट्रिंग S2 टू S1, जो स्ट्रिंग 2 का डाटा S1 में आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा विदाउट एनी लूप। स्ट्रिंग एन कॉपी, सारा कॉपी नहीं करना, कुछ कॉपी करना है, चंक, कितना चंक कॉपी करना है वो आप इसमें मेंशन कर देते हैं। कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं आपस में, फंडामेंटल्स एक स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, ऑफ प्रोग्रामिंग दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर्ड है, आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, अपेंड करना है। एनकैटिनेशन कंप्लीट नहीं करना, कुछ चंक करना है। कंपैरिजन करना, दो स्ट्रिंग्स को क्या वो इक्विवेलेंट है, तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेट से 1 आ जाएगा, लेस है तो -1 आ जाएगा, उस तरह की आउटपुट आ जाएगी। तो इसमें से अब हम किसी एक एग्जांपल को देख लेते हैं, तो इट वुड बी वेरी इजियर। इट कुड बी सी स्ट्रिंग, इट कुड बी स्ट्रिंग लाइब्रेरी, डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर वेरिएंट। कैरेक्टर एक्स इनिशियलाइज कर दिया, कंप्लीट लिटरल, ठीक है। कैरेक्टर वाई, ठीक है जी, अभी क्रिसमस नहीं आई, कैरेक्टर वाई और कैरेक्टर जी, ठीक है जी। आगे देखें, एक्स का कंटेंट क्या है जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप चाह रहे हैं ये कंप्लीट कंटेंट वाई में आ जाए विदाउट एनी लूप, उसके लिए आपको सिर्फ ये फंक्शन सी स्ट्रिंग की लाइब्रेरी, just write string copy, x source y destination, it is done. See out y, it will complete the complete text. ये वो लाइब्रेरी है, ताकि आपको कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करनी, स्ट्रिंग कॉपी, कंप्लीट कॉपी करें x को y में। अब आप चाहते हैं कंप्लीट नहीं करना, कुछ चंक कॉपी करना, टिल हैप्पी बर्थडे के y तक कितने कैरेक्टर्स बनते हैं। आप चाहते हैं कंप्लीट कॉपी नहीं करना, कुछ चंक कॉपी करना, टिल दिस वाई, तो कितने कैरेक्टर बन गए, एन कॉपी, एक्स इज सोर्स, ठीक है, जी इज डेस्टिनेशन, 14 कैरेक्टर्स, 0 till 13,
जी, और 14th पे क्या आएगा? वाई आ गया, ठीक है, अपेंड हो गया उसमें, ठीक है, खुद से आपने कर दिया। इसको अब आप डिस्प्ले करें जी को, क्या आएगा? हैप्पी बर्थडे। अब जेनेरिक हो गया, जिसकी जब भी है वो कर नहीं जी, 25th को आप लोगों को छुट्टी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आप देख लें, एक्स का कंटेंट कंप्लीट वाई में कॉपी करना है तो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। आपने कुछ चंक को कॉपी करना है तो चंक भी हो गया, ठीक है। चंक मीन्स अ पोर्शन ऑफ टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज में हम बात को एंड करते हैं कि आपने एज अ स्टूडेंट, बात सुन लें भाई, आपने एक एज अ स्टूडेंट रिकॉर्ड को सेव करना है। अब उस रिकॉर्ड में आपका नाम भी है, सेमेस्टर नंबर भी है, आपका जीपीए भी है, आपके कोर्सेज की डिटेल भी है। क्या ये कंप्लीट रिकॉर्ड आप एक एरे में सेव कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो ना नहीं, किस तरह कर सकते हैं मुझे बताएं ना। एरे में तो या तो इंटीजर आएंगे, मैं कह रहा हूं आपने नाम भी सेव करना है अपना। कितने एरे बनाएंगे? ठीक है, एरे तो ऐसा कंटेनर है जिसमें आप एक टाइप का डाटा डाल सकते हैं, तो कितने कंटेनर बनाएंगे? देखिए, एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, आपने एक कंटेनर में डाला हुआ उसका नंबर, दूसरे में उसका नाम, फिर उसका सीजीपीए, ठीक है। कई कैरेक्टर्स में आपका डाटा आपको रिकॉर्ड चाहिए, isn't it? बात समझ आ रही है आपको? एरे इज अ, I would say, homogeneous container in which you can only store single type of data, either integers, either strings or characters. What if आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी? अब आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करना है, बैंक के क्लाइंट का रिकॉर्ड सेव करना है, एग्जैक्टली दैट इज हेटेरोजीनियस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ये किस तरह सेव होगा? उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलें जी, इसी खुशी को मद्देनजर रखते हुए